importance of this cell and basically what startup initiative which has been undertaken by Government of India and different states also. So now, when you'll be clear about what entrepreneurship is, then I think you'll be more familiar with this startup concept. Now, India, as you know, everybody says it is a young India. Young India bolte hain. Why young India? Because out of 130 crore people who live in my country, majority of them, 70% of the people living in my country, they're below 35 years. That's why nobody calls Thailand as a young, Japan as a young, but India is a young, because 35% of the population of my country is, 70% of the total population of country, of my country, they're below 35 years. So young India, na? But now look at the challenges which young India is facing. Majority of people sitting at home, idle, they're educated, unemployed youth, and there are a large number of people, they call them that we are unemployed. So, आज की डेट में, if we talk, so when we go to the school, we go to the college, we go to the university, तो उसके बाद एक ही objective है कि that after having my degree or having my postgrad degree, I should be placed somewhere so that I'll be economically independent. So days are over when we used to get the job next day after the completion of our studies. तो ये दिन खत्म हो गए. I'm talking about 1985 when I was a student. In 1985, I did my MPhil in economics, and next day morning, I got a call from a bank and I was appointed within a day. So वो दिन खत्म हुए because today you have a challenge that the people who are passing out in 2000, they have to appear for the interviews, and when you will be appearing for the interviews, so there are large number of people, they are appearing in the same interview and who have passed out their examination 10 years before, 15 years before. Means 2020 में जो बच्चा आज पास करता है, कल को वो अगर किसी इंटरव्यू फेस करता है तो उसके साथ compete करने वाले 2005, 2010, 2015 वाले हैं. So like this is a challenge we are facing, and we have to face every day the competition becoming more and more. बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कंपटीशन. तो उस कंपटीशन को मतलब फेस भी करना पड़ेगा. There will be no second thought about that. तो when we are students, we are looking for, मतलब हमें दो ही चीज नजर आती है कि we will, after passing out our degree or diploma or after PG, we'll be opting for the job. And job, generally people feel the job is of two types: the job with the government or job with the private sector. ये दो ही जॉब हमने सीखी है. तो एम्प्लॉयमेंट की जब बात चलती है, वन एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट और सेकंड एम्प्लॉयमेंट विद प्राइवेट सेक्टर. तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट जो है डे बाय डे एवरीबॉडी नोज द नंबर इज डिक्रीजिंग. वो जॉब की नंबर जो है डिक्रीज होता जा रहा है और मिलती बड़े कम लोगों को है. तो पहली क्लैरिटी तो हमें ये चाहिए कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज you will be surprised to know if I tell you out of 130 crore people, how many people they are doing government job. आज आपके सामने नहीं बैठा, otherwise whenever I take session तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि what do you feel, how many people they are doing job with the government, तो कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 10%, कोई बोलता है 20%, but in reality what is there? 1 करोड़ 94 लाख, 1.95 या 94 crore people, means which is less than 2%. Less than 2% people they are doing the government job. वही करते हैं. And when we talk about the private sector, तो private sector हम सबको लगता है टाटा बिरला की बात हो रही है, मफसर सिंघानी की बात हो रही है, but वो तो बड़ा छोटा सा सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर. In India there is a unorganized private sector, or majority of people in my country, if they are working in the private sector, they are working with a unorganized private sector. तो unorganized private sector कौन सा है? मेरी कैंटीन है, मेरी मेस है, बार रेस्टोरेंट्स है, बार ढाबा है, हलवाई की शॉप, ये सारा का सारा जो है इट इज अ प्राइवेट सेक्टर विच इज अनऑर्गेनाइज्ड. घरों में लोग काम करते हैं, अगेन इट इज अ प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर द जॉब अदर देन गवर्नमेंट, देन दे विल बी लुकिंग फॉर द जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर एंड दे विल बी गेटिंग जॉब इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो अनऑर्गेनाइज्ड में करने से मजा नहीं आने वाला. ऑर्गेनाइज्ड बहुत कम है, क्योंकि 1 करोड़ के लोग जो है हमारी कंट्री में आज की डेट में ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं. तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन माय कंट्री दे आर वर्किंग विद द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर. तो नाउ आज मैं आपके साथ एक नई चीज शेयर करने लगा हूं, और वो शेयर कर रहा हूं
कि there is a third type of employment also, which is very, very important. And if you will understand that third type of employment, then innovation, startup, and everything will be clear to you. Now, which is that third type of employment? That is a employment not with government, not with private, but that is employment with self. And we call that as a self employment. तो ये जो स्टार्टअप है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ. तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहले आपको बताता हूँ, फिर हम आएंगे अल्टीमेटली इनोवेशन पे और स्टार्टअप पे. नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स. तीन टाइप की होती है. वन जिसको हम बोलते हैं बिजनेस, ट्रेडिंग, परचेज किया, सेल किया, इसको ट्रेडिंग, इसको दुकानदार जैसे बोलते हैं हम. तो ये बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बट इसको इंडस्ट्री नहीं मानते. इंडस्ट्री मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग को या सर्विसिंग सेक्टर को. इंडस्ट्री क्या है कि वी प्रोक्योर या वी परचेज द रॉ मटेरियल, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, और उसके बाद तीसरी चीज किया, उसको सेल किया. परचेज किया रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, एंड उसके बाद सेल किया उस प्रोडक्ट को. तो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग में, इसको इंडस्ट्री बोलते हैं. और तीसरी चीज होती है सर्विसिंग सेक्टर में, जिसमें ना हम परचेज करते हैं ना हम प्रोड्यूस करते हैं, बट वी ओनली सेल. एंड व्हाट वी हैव टू सेल, हमें एक ही सेल करनी पड़ती है. एंड सेलिंग क्या है, सेलिंग ऑफ द स्किल्स. तो हम अपनी स्किल सेल करते हैं. तो दैट इज अ सर्विसिंग सेक्टर. तो इंडस्ट्री की जब बात चलती है तो इंडस्ट्री दो ही टाइप की होती है, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग सेक्टर. और जब इनोवेशन की बात चलती है, स्टार्टअप की बात होती है, तो स्टार्टअप इज लिंक्ड विद इंडस्ट्री. एंड इसका मतलब क्या है, व्हेन वी विल बी talking about startup and innovation, तो innovation और startup should be in the field of industry. तो industry मैंने आपको बता दी, industry जो है it is a manufacturing and it is a servicing. Now when we talk about industry, तो एक important चीज पहले आपको बता दूं, और वो important चीज क्या है कि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री चार टाइप की होती है. पहले होती है, उनको बोलते हैं हम, वो अलग मिनिस्ट्री है, और एक दूसरी अलग मिनिस्ट्री है. तो पहली मिनिस्ट्री जो है वो तीन टाइप की इंडस्ट्री के साथ डील करती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, MSME. इसको बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो ये तीन इंडस्ट्री ये होगी. और चौथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन ऑफ MSME चेंज कर दिया. और क्या किया उन्होंने, माइक्रो की डेफिनेशन कर दिया. भाई सुनना बेटे, क्योंकि व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको ये चीज पता होगी तो बात बन जाएगी. नाउ फ्रॉम 14 मई 2020 ऑनवर्ड्स, आज की डेट में जो डेफिनेशन है, माइक्रो की डेफिनेशन है वो इंडस्ट्री जिसपे 1 करोड़ तक की लागत आती है. 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इट मींस इट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ की इंडस्ट्रीज को बोला जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज अब अगर आप काम करना चाहते हो, माइक्रो में काम करना चाहते हो, 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, अगर स्मॉल में करना चाहते हो 1 करोड़ से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और अगर मीडियम में करना चाहते हो 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट. ये आपको बताया, इसलिए बताया कि आप ये ना सोचो कि कल अगर हम इंडस्ट्री में या स्टार्टअप में या इनोवेट करके कुछ जाते हैं तो हमें फिर बहुत बड़ा सकते हैं इनोवेशन. अभी वो उसका डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ. बट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, विच शुड बी न्यू, यूनिक एंड फॉर द लॉन्ग टर्म. ये नंबर 1. सेकंड, रिसोर्सेज कुछ अपने आप से, कुछ घर वालों से, कुछ रिश्तेदारों से, एंड कुछ रिसोर्सेज जो है आपको डिफरेंट स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं. उनकी अवेयरनेस, और उसके बाद उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना. रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए, आपका प्रोजेक्ट आपके पास है विच इज इनोवेटिव या अदरवाइज, वो प्रोजेक्ट को लिया, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, उसके बाद आपने वेंचर सेटअप कर दिया, एक्शन किया. और एक्शन किसके लिए किया, अपने के लिए. अपने किसके लिए कि मैं एंटरप्रेन्योर का बेटा एंटरप्रेन्योर, फौजी का बेटा फौजी, किसान का बेटा किसान. बट एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न, ये मिथ बिल्कुल झूठी है. बिकॉज रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, दे स्टार्टेड देयर वेंचर, दे आर रनिंग इट सक्सेसफुली. इसका मतलब क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर्स कैन बी प्रमोटेड बाय एनीबॉडी, कर सकते हैं. वो खत्म है चीज कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, कि पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते. एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्रिएटेड, क्रिएट किए जा सकते हैं. तो आज की डेट में आपको मिलेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड देयर वेंचर. उनके खानदान में कभी किसी ने वेंचर नहीं किया था,
they were doing agriculture, they were in service, they were doing something else, and they started industrial venture और वो सक्सेसफुली कर गए। तो इसका मतलब क्या है, हम सब अगर सोचे तो हम कर सकते हैं। तो नाउ कम टू दैट पॉइंट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन तीनों का डिफरेंस बता नहीं पाते, तो वैसे सोचते हैं। तो नाउ फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू क्या क्या है। मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज बड़ा प्रमोट कर रही है इस चीज को, वो है स्वदेशी। आपने सुना है स्वदेशी? तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स की हो। बिकॉज आज की डेट में हम जब बात करते हैं तो इंडिया इज डूइंग वेल इन सर्विसिंग सेक्टर, बट हम थोड़े से पीछे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग। चाइना की बात करें, थाईलैंड की बात करें, जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो दे आर अहेड देन अस, हमसे आगे निकल गए किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। बट हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से वीक है, सर्विसिंग सेक्टर में हम बड़ा ग्रो कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट सेज कि अगर कंट्री ने डेवलप करना है, कंट्री ने ग्रो करना है, कंट्री ने ऊपर जाना है, तो कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये नहीं कि आइटम बनी चाइना में, उस पर लिख दिया मेक इन इंडिया, वो नहीं चलता। बट इंडिया में बनाना है, आइटम को इंडिया में बेचना है। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हमारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन हमारी, दे आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स जिनकी ब्रांडिंग इंडिया में ही है, इंडिया में बनते हैं, वो चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब उनको आइटम नहीं मिलती तो बाहर से बना वो परचेज करते हैं। तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो लिया इसलिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में स्टार्ट करें, नंबर वन। उसके बाद दूसरा आपसे बात करें स्टैंड अप इंडिया। ये भी लोगों को कंफ्यूज करता है कि पता नहीं चलता क्या है। बट स्टैंड अप इंडिया एक कॉन्सेप्ट था, ये है प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट, हाँ जी ये सुन लेना, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट वुमेन एंड SC ST। तीन कैटेगरीज में, वुमेन के लिए, SC के लिए, ST के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ये लोग भी इंडस्ट्री में नहीं आते, इनको लेके आए। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, जिसका स्कीम का नाम रखा 2016 में, अप्रैल 2016 में ये स्कीम लॉन्च की थी। इसको बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में हेल्प प्रोवाइड करनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड करने हैं टू वुमेन, टू SC, टू ST कैंडिडेट्स, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस। ये दूसरी चीज आ गई। और अब इंपॉर्टेंट आया स्टार्टअप, जिसका आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, स्टार्टअप इंडिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कल परमजीत सिंह बोलता है कि मैंने कोई यूनिट लगाना है तो आई एम ए स्टार्टअप, तो आई एम ए स्टार्टअप। ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप के साथ जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जुड़ी है, दैट इज ए इनोवेशन, दैट इज ए क्रिएटिविटी। जो अभी मैडम ने आपको जब इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने बताया कि वी हैव स्टार्टेड ए सेल विद द नेम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप है ही इनोवेशन के साथ, कि यू हैव ए प्रोजेक्ट, यू हैव ए प्रोडक्ट इन माइंड जो आज की डेट में नहीं चल रहा, वो प्रोडक्ट आप लेके आना चाहते हो, नया प्रोजेक्ट है, यूनिक प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, आपके दिमाग में है, आप सोच रहे हो, तो उसको आप स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप पंजाब, स्टार्टअप हिमाचल, ये पोर्टल्स हैं डिफरेंट पोर्टल्स पे, उस पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिल गया। जिस दिन आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिल गया, अब आपके मन में उमंग है, इनोवेटिव आइडिया है, पर वो आइडिया ही है ना। अब उस आइडिया को कैसे हमने आगे चलाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू स्टार्टअप में एक आगे चीज दी कि व्हेन समबडी विल बी कमिंग विद अ यूनिक आइडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग हिम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो आप यूज करना चाहते हो थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स। इंक्यूबेटर्स है। इंक्यूबेशन किसको बुलाया जाता है? जब बच्चा प्री बॉर्न होता है ना, उसको इंक्यूबेशन में रखते हैं कि वो जी पहले वो बच्चे को थोड़ा सा माहौल से उसको अवगत कराया जाए, उसको फिर उसको हम बाहर लाएंगे। तो इंक्यूबेशन का मतलब है कि यू हैव ए प्रोजेक्ट इन माइंड एंड यू वांट टू डू रिसर्च ऑन दैट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सच में चल सकता है, लग सकता है, तो उसकी रिसर्च आप करना चाहते हो। तो रिसर्च के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटीज थ्रू इंक्यूबेशन। हर मशीन आपको अवेलेबल होगी जो आप काम करना चाहते हो। एवरी फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। यू हैव टू डू रिसर्च। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जितने दिन भी आप रिसर्च करना चाहते हो करो। एंड रिसर्च करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आपने लाके कमर्शियली वाइबल बनाना है, मीन्स उसको मार्केट में लाना है, उसको सेटअप करना है। ये सेटअप स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप मीन्स द प्रोजेक्ट्स विच आर इनोवेटिव,
which are creative, which are unique. आज की डेट में नहीं चले, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कुछ करना है और करने के बाद उस प्रोजेक्ट को लेके आना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद उस प्रोजेक्ट को कमर्शियली वायबल बनाना है। तो ये है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब फैसिलिटीज दे रही है। आपको रजिस्टर्ड होना है स्टार्टअप में, बट यू हैव टू कम विद न्यू आइडिया। ऐसा नहीं कोई आइडिया पहले लगा हुआ है उसको हमने उठाया तो फिर कमाल कर दिया, और ऐसा भी कोई नहीं है कि ऐसी साइंस बना देनी है जो साइंस आज तक नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को लेके आना है, उसको नए ढंग से पेश करना है, और नए ढंग से पेश करने के बाद आपने देखना है उसको कैसे। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री अपना जो उसकी प्रॉफिट है वो बढ़ा नहीं पाएगी बाय डूइंग मोर प्रोडक्शन, वो नहीं है आज इंपॉर्टेंट। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीलिंग है कि अगर हम अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करें या ना करें, और हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो आज कॉस्ट कटिंग के लिए न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज, इफ यू विल बी कमिंग विद दैट आइडियाज, इफ यू कमिंग विद द न्यू टेक्निक्स, तो उनको वो स्टार्टअप पे सपोर्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विल बी डूइंग रिसर्च करने के बाद आपको लगा कि यू आर ए गर्ल, स्टैंड अप इंडिया का बेनिफिट ले सकते हो, मेक इन इंडिया का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे वो मुद्रा स्कीम है, चाहे कोई भी स्कीम है, बड़ी स्कीम है, लार्ज नंबर स्कीम्स आर अवेलेबल, तो उन स्कीम्स का आप बेनिफिट लेके अपना वो स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टार्टअप डजंट मीन कि आप नया यूनिट लगा रहे हो तो स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप मीन्स सम इनोवेशन, है ना, सम यूनिकनेस, है ना, सम न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच यू विल बी ब्रिंगिंग एंड दैट विल वर्क, है ना। नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल बी गिविंग एग्जांपल। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता हूँ, तो मुझे आमतौर पे लोगों का ये सवाल बड़ी बार आता है। वो सवाल ये आता है कि सर, यू नो मार्केटिंग, यू नो फाइनेंस, यू नो अकाउंट्स, यू नो एवरीथिंग, एंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर वाइबल। तो आप सब कुछ करने के बाद तो आप खुद तो जॉब करते हो। यस, इट इज ट्रू। 1986 आई टोल्ड यू, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा। तो आपको निकालना है इनोवेशन, आपको लगना है क्रिएटिविटी कैसे करनी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिविटी ये नहीं कि ऊपर से आसमान से कुछ चीज गिरने वाली है। हम ब्लैक बोर्ड पे काम करते थे, चौक गिरता था, चौक आंखों में जाता था, चौक वहीं जाता था, है ना, हाथ फटते थे, है ना। उसके बाद क्या आया कि चौक दूसरा कुछ चेंज कर दिया, इसमें चूना नहीं है कुछ और है, वो चौक हुआ। फिर चौक के बाद देखा ये बात नहीं बनती, तो वो ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड आने शुरू हो गए, और व्हाइट बोर्ड पे जब हमने करना शुरू किया तो वो पेन आए जिनके बेसिस पे हमने लिखना शुरू किया, मार्कर्स आए, मार्कर से हमने लिखना हुआ, ये इनोवेशन आई ना। अब मार्कर से आगे निकला, आज ऐसे बोर्ड्स आ रहे हैं जिनके ऊपर आप उंगली से लिख सकते हो, और उसके बाद भी और नए बोर्ड्स आ रहे हैं जिसमें किसी और ढंग से, ये इनोवेशन है सारी। इसको इनोवेशन बोलते हैं, इसको स्टार्टअप बोला जाता है ना। किसी चीज में भी कोई नई चीज लेके आना, तो दैट इज इनोवेशन। अब लिखने का काम ही आ रहा है, पहले ब्लैक बोर्ड था, फिर व्हाइट बोर्ड था, फिर और बोर्ड हो गया, और आज जो है पूरा का पूरा जो है इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड। वो जो आज आपके बोर्ड आने शुरू हो गए, है ना, आप यहां से टाइप करें वहां पे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनोवेशन है। दैट टाइप ऑफ इनोवेशन, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपने डेवलप करनी है, उसको स्टार्टअप में लेके आते हैं, है ना। तो नाउ मैं आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आप उसको देखना, इसमें डू यू फील इट इज इनोवेशन आल्सो, इसको देखना। नाउ व्हाट आई डिड 1986 when I passed out from examination and came out, तो नेक्स्ट डे आई गॉट जॉब विद द पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंक में जॉब मिल गई, बैंक में जॉब करनी शुरू कर दिया, बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब एट शिमला। शिमला वाज माय नेटिव प्लेस, दैट वाज माय बर्थ प्लेस, तो आई थॉट कि शिमला में रहना है। बट बैंक में ये था 3 साल के बाद ट्रांसफर होती है। आई लेफ्ट द जॉब एंड आई ज्वाइंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनका एक टेक्निकल विंग था, उसको ज्वाइन कर लिया, और उसमें यह था कि आई विल बी स्टेइंग एट शिमला, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। बट सडनली 19 मतलब कि कोई 86-87 में मेरे को थोड़ी सी पेन बैक के करने लगी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हिमाचल में ट्रेवल करना इज नॉट एडवाइजेबल, तो बेटर यू गो टू द प्लेन्स एरिया। तो आई थॉट नियर बाय इज चंडीगढ़। आई ऑप्टेड फॉर वन जॉब अगेन विद नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गॉट दैट जॉब with one thing that I'll be staying in Chandigarh, which is very close to Shimla. So I got that job. I started my job, and in that particular job, I used to train the people for entrepreneurship.
उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप चालू हो गया था, और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड आईआईटीज दे यूज्ड टू कंडक्ट प्रोग्राम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों को मोटिवेट करते थे। 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे केम अप विद वन अवार्ड, दैट वाज अवार्ड फॉर द बेस्ट ट्रेनर मोटिवेटर ऑफ द कंट्री। ये अवार्ड था। तो उसके लिए 500 लोगों ने अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई कर दिया, और 500 में से फिर 50 में से 10 लोगों को फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किया, एंड आउट ऑफ दोस 10 आई वाज आल्सो देयर, एंड फाइनली द बेस्ट ट्रेनर मोटिवेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड जो था वो 1992 में मुझे मिल गया। 6 दिसंबर 1992 को वो प्राइज मिलना था। नरसिम्हा राव जी ने प्राइम मिनिस्टर थे एट द टाइम, उन्होंने वो देना था अवार्ड, पर 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद कांड हो गया, वो ही कुडंट कम, बट आई वाज अवॉर्डेड बाय समबडी एल्स, वो अवार्ड मिला। आई केम बैक, उसके बाद मैं क्लासेस लेता था, पीपल यूज्ड टू से ही इज द बेस्ट ट्रेनर मोटिवेटर ऑफ द कंट्री। तो लोग कहते थे कि लोगों को आप प्रमोट करते हो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लोग एंटरप्रेन्योरशिप लगाते हैं, बट यू स्टिल यू आर डूइंग जॉब, आप क्यों नहीं करते? तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाता था, बिकॉज आई वाज नेक्स्ट टू माय बॉस इन माय ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बढ़िया काम कर रहा था। बट इन 1995 आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड ए स्मॉल वेंचर एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ऑटोमोबाइल का एक छोटा सा यूनिट सेटअप किया, और उसके ऊपर ठीक लगा, तो वो ठीक चल पड़ा। मार्च में स्टार्ट किया, दिसंबर तक देखा बहुत बढ़िया चलता है। दिसंबर में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट की जिसका नाम रीजनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे मैं आज डायरेक्टर हूँ, वो रखा। ये ₹2.5 के पेन से स्टार्ट किया, आज इसकी टर्नओवर इट इज इन क्रोर्स, है ना, तो वो भी ठीक चल रहा है। वी आर वर्किंग टुडे इन हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सब कुछ जगह काम करते हैं। वेंचर मेरा वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चलती है। उसके बाद मैं यूं करता था, आई यूज टू गाइड द पीपल। तो आमतौर पे मेरे पास फार्मर्स बहुत आते थे, एंड फार्मर्स यूज टू टेल मी, सर हमें बताओ हम क्या करें, हम तो फांसी ले रहे हैं, हम ये करें। तो मैं उनको बोलता था, दुनिया की बेस्ट आइटम आप प्रोड्यूस करते हो, बट आप प्रोड्यूस करने के बाद उसको कच्चा बेचते हो, आप उसमें वैल्यू नहीं ऐड करते, इसलिए आप गरीब हो। क्योंकि आज आप सब जानते हो कि कणक बेच देता है किसान, उसका आटा प्रोसेस कोई और करता है, और जब हम पूछते हैं आटा किसका खाते हो, तो जितने लोग आप बैठे हो तो आप सब बोलते हो हम आशीर्वाद का आटा खाते हैं। आशीर्वाद ने कणक नहीं प्रोड्यूस की, कणक को प्रोड्यूस की फार्मर ने, पर फार्मर ने रॉ बेचा। चिप्स खाते हैं अंकल चिप्स, आलू बेचता है किसान, सॉस खाते हैं किसी और की, पर टमाटर बेचता है किसान, है ना। तो मैंने उनको गाइड किया कि यू हैव टू ऐड वैल्यू, देन सेल द प्रोडक्ट। उनको एग्जाम्पल दिए, कनक 10 रुपए किलो बिकती है, एक आदमी कनक को लेता है और कनक को प्रोसेस करता है, उसका दलिया बनता है, दलिया 60 रुपए किलो बिकता है, आहार दलिया 250 रुपए किलो बिकता है। तो उनको बताया कि आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, गरीब रहोगे, और साथ में उनको बोला कि यू डू अलाइड एक्टिविटी। तो आप सब जानते हो अलाइड एक्टिविटी क्या होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मिंग, तो ये डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब अलाइड एक्टिविटी है। बट एक और अलाइड एक्टिविटी उनको मैंने सजेस्ट किया, दैट इज बी कीपिंग, कि बी कीपिंग करो। तो उन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट किया, शहद प्रोड्यूस किया, उनकी मैंने हेल्प की लोन लेने में, उन्होंने सब शहद प्रोड्यूस करके दे केम टू मी, कहते हैं शहद हमने प्रोड्यूस कर दिया, ऐड वैल्यू इन दिस, अब इसमें वैल्यू ऐड करो और वैल्यू ऐड करके बेचो, हमें बताओ कैसे पैसा बनता है। तो मैंने उनको बोला अपने आप करो, कहते नहीं। इन 2007-8 जब मेरे पास किसान बहुत ज्यादा आए और ये बोले कि हमें वैल्यू ऐड करके बताओ, तो आई स्टार्टेड वन वेंचर। अब इसको आप इनोवेशन मानो या इसको कुछ और मानो, अब हमने क्या किया, अब देखिए है तो एक चीज जो चल रही थी, पर उसको कैसे हमने पेश किया। तो वी स्टार्टेड ए वेंचर एट शिमला, माल रोड पे हमने स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ हनी हट। ये चंडीगढ़ में भी था, ये मनाली में भी है, ये ऋषिकेश में भी है, ये सभी जगह पे है, विद द नेम ऑफ हनी हट। उसमें क्या किया, टी विद कॉफी, टी विद हनी, कॉफी विद हनी, कॉस्मेटिक विद हनी, आइसक्रीम विद हनी, पेस्ट्री विद हनी, बेकरी आइटम्स ऑल विद हनी, एंड एवरीथिंग विद हनी हनी हनी। अब वो क्या था, वो तो लोग पहले भी खाते थे, बट हमने इसको नया नाम दे दिया। क्या दे दिया, हमने उसको हनी के साथ जोड़ दिया, और आई स्टार्टेड ए वेंचर। 9,75,000 रुपये लोन लिया, 10 लाख का एक वेंचर स्टार्ट किया शिमला में, और आज वो वेंचर वहां से चला, मनाली गया, चंडीगढ़ गया, ऋषिकेश, राम झूला ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, नैनीताल, माल रोड, मसूरी, माल रोड, बॉम्बे, अंधेरी वेस्ट, है ना, सब जगह चला गया। और 2016 में
for setting up that venture, I was awarded a best entrepreneur for promoting the unit, है ना, वो हनी हट। अब हनी हट में क्या किया मैंने, कुछ नया तो नहीं किया ना, बट मैंने एक चीज किया। क्या किया? कुछ नए ढंग से पेश किया। और वो नया ढंग क्या था? नया ढंग क्या था कि मैंने उसमें इंस्टेड ऑफ शुगर हनी को डाला और उसके बेस पे काम करना शुरू कर दिया। नाउ लुक एट दिस, ये क्या था? ये कोई मतलब कमाल नहीं ऐसा किया, बट इसको एक अलग ढंग से पेश किया, लोगों को बता दिया आई एम डिफरेंट देन अदर्स, मैं दूसरों से डिफरेंट हूं। आज आपको ये करना है इनोवेशन, आपको ढूंढना है कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपका जो प्रोडक्ट है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आपने प्रूव कर दिया तो बात बन गई, अगर आपने प्रूव नहीं किया तो बात नहीं बनी। सिर्फ एक सेकेंड, पूरी कॉल करेक्ट है, सॉरी जी। नाउ मीन्स आज इंडस्ट्री में इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इफ वी टॉक अबाउट एनीथिंग, तो व्हाट डू यू प्रेफर? यू प्रेफर ओनली वन थिंग, दैट वट एवर यू आर डूइंग, आपने जो भी करना है तो यू हैव टू शो एवरीबॉडी दैट इट इज इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट अदर्स आर डूइंग। और आज if people will be purchasing your item only on the basis of that. So now if you go for the innovation, आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आज चुनते हो जिसमें आपकी ये कॉलेज भी हेल्प करेगा, तो उसके बाद सेकंड हेल्प they'll be what they'll be doing कि जो स्टार्टअप स्टेटस आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आज स्टार्टअप की बात चल रही है तो स्टार्टअप इंडिया भी चल रहा है, स्टार्टअप पंजाब भी चल रहा है, स्टार्टअप हिमाचल भी चल रहा है, स्टार्टअप हरियाणा भी चल रहा है, ये सारे चल रहे हैं, पोर्टल बेस्ड है सारे के सारे। तो सेकंड थिंग, जो आफ्टर getting that idea, discuss with the people जो आपके बहुत क्लोज है, नोन है, एंड यू हैव टू रिसर्च इट कि जिस इनोवेशन की आप बात करते हो, ये इनोवेशन ऑलरेडी हो तो नहीं चुकी। कल ऐसा ना हो कि जिस इनोवेशन पे आप काम कर रहे हो वो तो ऑलरेडी हो चुकी है और आप बोलोगे ये मेरी इन्वेंटेड है। इन्वेंटेड नहीं, आपकी नहीं है, वो तो किसी और की पहले है। और ऐसा भी ना हो कोई इनोवेशन आप लेके आओ और वो इनोवेशन आपसे कोई ले और दूसरा कुछ उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, वो चीज आपको इंश्योर करनी है। बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू कम विद द यूनिक आइडिया, आपको इनोवेटिव आइडिया। अगर आप वो आइडिया लेके आते हो, डिस्कस विद पीपल, डू द रिसर्च, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस इनोवेशन के बेसिस पे हम क्या नया कर सकते हैं। आई नो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ पीपल दे आर वर्किंग ऑन साइकिल पे इनोवेशन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की इनोवेशन कर रहे हैं, और उसको वो इनोवेशन मानी जाती है, उसको माना है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं कि जो काम पहले हो रहा है उसमें कुछ नहीं, बट उसी काम में आप नया यूनिकनेस क्या लेके आने वाले हो, क्या चीज लेके आने पड़े हो जिसके बेसिस पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उसका कुछ और हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनोवेशन में आएगी। बट रिसर्च ये करनी है कि पहले किसी ने किया तो नहीं, और जब नहीं किया देन यू हैव टू गेट द स्टेटस ऑफ स्टार्टअप स्टेटस। जब आपको मिल गया, वो दे विल सी कि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद दे विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू गो टू द एनी इंक्यूबेशन सेंटर रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, बिकॉज आज प्रोजेक्ट्स बहुत हैं और सभी का एक जगह इंक्यूबेशन सेंटर नहीं बन सकता। फॉरेस्ट बीज, कल कोई एग्रीकल्चर करता है उसका अलग इनोवेशन सेंटर, कल कोई फ्लोरिकल्चर करता है उसका अलग इनोवेशन सेंटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहा है उसका अलग, कोई मैकेनिकल का कर रहा है कोई और। तो जैसे अब आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करो, इनोवेशन वो कर रहे हैं मैकेनिकल में, IIT रोपड़ कर रहे हैं, थापर वाले करते हैं, कई और कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में वो आपको वो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंड थिंग, आफ्टर गेटिंग योर स्टार्टअप स्टेटस, देन यू हैव टू गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर में जब आप गए तो यू विल बी डूइंग रिसर्च, उसमें पूरी आपको हेल्प मिलेगी, मशीन्स मिलेंगी और जो भी आपको हेल्प चाहिए दैट हेल्प यू विल बी गेटिंग। और जिस दिन आप कॉन्फिडेंट होते हो कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस प्रोडक्ट विल बी मींस सेलेबल और ये बन सकता है और बिक सकता है, देन द नेक्स्ट थिंग कम्स कि अब आपने उसको वेंचर को सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए देन यू हैव टू सी इन विच स्कीम दैट फॉल्स, कौन सी स्कीम है जिस स्कीम में आपको इसके लिए लोन मिल सकता है और आपको असिस्टेंस मिल सकती है। बिकॉज जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने पैसे से लगाए जा सकते हैं।
तो वो पैसों के लिए हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन स्कीम्स को अंडरस्टैंड करके किस स्कीम में हम बिल्कुल फिट होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स जिनमें 5% अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसी में 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसी में 25% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसी में 33% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स कि किस स्कीम में आप फिट इन होते हैं और जिस स्कीम में आपका प्रोजेक्ट ये चल सकता है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आज की डेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टअप के साथ चली है, दैट इज अ वेंचर कैपिटल, जिसको हम एंजल फंडिंग भी बोलते हैं। तो आपको फंडिंग अगर चाहिए तो देयर इज नो नीड टू गो टू द बैंक्स, देयर इज नो नीड टू गो टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब आप बात करते हो हमें इंडस्ट्री की लोन चाहिए, तो एमएसएमई की स्कीम्स के तहत ले सकते हो, बैंक्स की स्कीम के तहत ले सकते हो, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसकी स्कीम के थ्रू ले सकते हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम्स के थ्रू ले सकते हो, और बैंक की अपनी स्कीम्स भी हैं लाइक मुद्रा एंड अदर्स, है ना, सिडबी की मैंने बताया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। वो स्कीम्स की आज बात नहीं कर रहा, नाबार्ड की स्कीम है तो उसमें भी आप कुछ कर सकते हो, नॉन फॉर्म सेक्टर के लिए वो देते हैं, तो उसमें भी अगर इनोवेटिव कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं। बट आज की डेट में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको एक नया चीज जो है वो मिल रही है, एंड दैट इज ए वेंचर कैपिटल, और इसको कई बोलते हैं एंजल फंडिंग। तो चंडीगढ़ में, पंजाब में बड़े लोग ऐसे हैं who are providing venture capital support and angel funding support to the startups. Startup का मतलब जिसने कोई अच्छी सी इनोवेशन कर रखी है, he'll be making presentation to few entrepreneurs, जो वेंचर कैपिटल जिनको बोले जाता है, जो वेंचर कैपिटल देते हैं। तो ये इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, और करते क्या, स्टार्टअप्स आते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, और प्रोजेक्ट करने के बाद वो अगर उनको अच्छा लगता है तो कहते हैं कितना फंड चाहिए, जितना फंड चाहिए वो फंड उनको देते हैं, और ये बोलते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, तो जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें 10%, 15%, 20% ये जब बातचीत होती है उसमें होता है। तो एंजल एंड वेंचर फंडिंग ये अवेलेबल है, इनकी मीटिंग्स होती है। स्टार्टअप जब स्टेटस मिल जाता है आपको, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंक्यूबेशन सेंटर वाले भी देते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर वाले आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट पे तो रिसर्च कर रहे हो, उसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और कल आपको जरूरत पड़े तो आप उन चीजों का बेनिफिट ले लो। तो वेंचर कैपिटल और एंजल फंडिंग के बारे में वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द कंपनीज, और आपको बताते हैं कौन कौन से ग्रुप्स है विच आर प्रोवाइडिंग। तो इनसे एक फायदा होता है, दो चीज मिलती है, एक स्टार्टअप को एक मिलता है पैसा, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, कोई श्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो वो उनको पैसा मिलता है वॉट एवर दे रिक्वायर। एंड सेकंड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है, वो उनको मिलता है बड़ी कंपनी का नाम, दैट पर्सन बिकम पार्टनर्स टू यू, वो आपका पार्टनर बन जाता है और उसके बाद आप काम करते हो। तो आज आपको जब मौका मिलेगा, जब आगे कभी क्लासेस लगेंगी तो आपको बताएंगे और मिलाएंगे भी उन लोगों से, हुआ स्टार्टअप्स, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया और कमाल कर दिया। तो वो स्टार्टअप के लिए फिर उनको एंजल फंडिंग और वेंचर फंडिंग मिल गया, तो ये दो बेनिफिट उनको मिल गए, तो कल को लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आई हैव जॉइंड हैंड विद दैट बिग कंपनी जो आज की डेट में कमाल करती है। तो बिग कंपनी को दो बेनिफिट मिलते हैं, एक उनको पैसा जो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो गया, सेकंड उनको एक और वेंचर मिल गया विच इज ए यूनिक, है ना, जिसमें उनका कल को नाम चलता है, तो वो भी कहते हैं कि हमने भी ये वेंचर में पार्टिसिपेट किया। तो वेंचर कैपिटल, एंजल फंडिंग, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स, दीज आर अवेलेबल, ये अवेलेबल है, पर किन के लिए अवेलेबल है, हु विल बी कमिंग द प्रोजेक्ट विच विल बी इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली वायबल, एंड उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट इज ए इनोवेटिव प्रोजेक्ट, वो नया प्रोडक्ट है जिसमें आपने कुछ नया करके दिखा दिया। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि नया कुछ नहीं, कोई आपने वहां से कोई चंद्रमा को उठा के नीचे ले आए, ये नया नहीं है। नया तो ये कि जो आज हो रहा है उसको नए ढंग से कैसे किया जाए। आप देखते थे लकड़ी के टॉयज होते थे, फिर प्लास्टिक के टॉयज आए, फिर प्लास्टिक के टॉयज करते करते आज रिमोट कंट्रोल जो है वो टॉयज आ गए। तो ये क्या है, ये सारी R&D है, ये रिसर्च की है, ये इनोवेशन है। और कभी किसी ने सोचा था कि भी, कभी हमारे टाइम पे हमने कभी सोचा नहीं था कि लकड़ी से ऊपर कोई खिलौना हो सकता है, बट उसके बाद प्लास्टिक के खिलौने आए, बड़े अच्छे अच्छे खिलौने आए, और आज खिलौनों की जब बात करते हो तो इतने कमाल के खिलौने आपको मिलते हैं। तो रिमोट कंट्रोल्ड है, बैटरी कंट्रोल्ड है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, दैट इज ए बेसिकली इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है कोई ऐसा कमाल नहीं कि पहाड़ तोड़ के लाना है, बट इनोवेशन वही है कि एग्जिस्टिंग जो चल रहा है इसमें क्या कुछ ऐसा नया कर दे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए,
हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए और हम लोगों को नई चीज दे दे, ऑल्टरनेटिव दे दे। तो जिस दिन आपने वो करना शुरू कर दिया तो बात बन जाएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दे दिया, व्हाइट बोर्ड सॉरी ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पे आए, व्हाइट बोर्ड से आगे चले और करते करते कुछ चले, बड़े बड़े मोबाइल से आए, छोटे छोटे करते करते आए मोबाइल कहाँ पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर जब आए तो बड़े 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 कंप्यूटर होते थे, बट इस पे लगातार रिसर्च चलती रही, लोग अपने नए इनोवेटिव आइडियाज देते आए और करते करते आज छोटे छोटे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड है ना, आज आपके पास हाथ में पहुंच चुके हैं। ये है इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है कि किस ढंग से कुछ नया किया जा सके, जिसके बेसिस पे हम आने वाले टाइम में प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पाएंगे, नया प्रोडक्ट बना पाएंगे एंड विल बी डिफरेंट। तो फिर बात बन जाएगी। बट वट एवर यू डू थिंक कि आने वाले कुछ सालों के बाद क्या होगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज इनोवेशन क्या चाहिए कि कल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, गाड़ियां कैसे चलेगी। लोगों ने इनोवेट कर दिया, इनोवेशन निकाली कि गाड़ियां चलेंगी बिजली के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आज चलने शुरू हो गए। फिर लोगों ने निकाला कि इलेक्ट्रिक जो है कई बार चार्ज नहीं हो पाएगा, तो इट विल बी चार्ज थ्रू सोलर। तो सोलर एनर्जी के बेसिस पे आज गाड़ियां चलनी शुरू होगी नहीं। अब उसके बाद कईयों लाया कि हम नया कोई और टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में, क्योंकि 5-10 साल में नई चीजें आनी है और आने वाले टाइम पे पेट्रोल नहीं मिलना, डीजल नहीं मिलना, तो व्हाट इनोवेशन यू कैन डू, इनोवेशन दैट इनोवेशन है कि आज कच्चा माल बिकता था, उसको कैसे इनोवेटिव बनाए। और आज लोग लगे हैं शुगर को यूज करके लार्ज नंबर प्रोडक्ट्स दे आर कमिंग एंड उसको आज उन्होंने उसको इनोवेटिव बना दिया। उसके शुगर केन का जो वेस्ट बिकता है, फेंका जाता है, उसके बेसिस पर प्लेटें बन रही है, पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं। ये है इनोवेशन कि वेस्ट को भी यूज कर रहे हैं, तो दैट्स इनोवेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं बात करूं कि आने वाले युग में लकड़ी होगी नहीं, क्रेमेशन होती है, आमतौर पे लोग बोलते हैं नॉर्मल लकड़ी, तो आने वाले टाइम पे अब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल क्रोटोरियम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना जी। तो इलेक्ट्रिकल के साथ आजकल गैस के भी आने शुरू हुए, और अब ये चंडीगढ़ में है, मोहाली में, बड़ी बड़ी सिटीज में, पर आने वाले टाइम पे ये गांव गांव में जाने वाले हैं। तो क्या ऐसा कुछ इनोवेटिव टेक्निक लगाए कि हम लकड़ी की रिप्लेसमेंट दे पाए। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड, जिनके रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड है, वो इनोवेशन क्या लेके आए। अब एक इनोवेशन आपके साथ बात करता हूँ, पीपल आर कमिंग विद दिस इनोवेशन आल्सो, पानी। अब पानी आता है और अभी गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो गवर्नमेंट, चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी, वो बोलता है कि भी जो पानी को वेस्ट करेगा उसका चलान होगा। गाड़ी धोते हैं तब चलान होता है, पानी गार्डन में देते हैं तब चलान होता है, और भी बड़े चलान होते हैं। बट आज हम गवर्नमेंट को ये नहीं पूछ पाए कि जो पानी हम पीते हैं वो पानी भी सेम है जिसे गाड़ी धोते हैं, वही पानी सेम है जो गार्डन में देते हैं, वो टॉयलेट्स में यूज करते हैं, वो भी पानी सेम है। तो क्यों ऐसा कोई इनोवेटिव मींस इनिशिएटिव कोई क्यों नहीं लेता कि हम ऐसा करेंगे कि बाथरूम के लिए पानी सेपरेट होगा, गार्डनिंग के लिए पानी सेपरेट होगा, गाड़ी धोने के लिए पानी जो है सेपरेट होगा, और पीने वाला पानी जो है इट विल बी एंटायरली डिफरेंट और 24 आवर्स चलेगा। इट इज हैपनिंग इन फॉरेन कंट्रीज, वी हैव टू कम विद दोस टेक्नोलॉजीज। तो सोलर जब आया तो लोगों ने, इट इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, तो इट इज ए न्यू ये इनोवेटिव आइडियाज है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हजारों हैं जो हमारे पास है, बट यू हैव टू कम विद दैट। तो आज जितने आप स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो, तो मैं आपको तो एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। पहली चीज तो ये, यस, आज के बाद एक बात तो मान लो कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स, 1 गवर्नमेंट, सेकंड प्राइवेट एंड थर्ड इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और मेरी आज जो चाहत है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चाहत है, तो दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल हु विल बी गोइंग फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा तो हिल बी क्रिएटिंग जॉब फॉर सेल्फ एंड हिल बी क्रिएटिंग जॉब फॉर अदर्स। तो आज जो जरूरत है उन लोगों की नहीं है, वो लुकिंग फॉर अ जॉब, बट आज उन लोगों की बहुत जरूरत है, विल बी क्रिएटिंग जॉब फॉर अदर्स। 20,000 की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स सेज 20,000 की इन्वेस्टमेंट अगर करें तो 1.5 आदमी को रोजगार मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कल आपने 1 लाख से काम शुरू कर दिया तो 7.5 लोग को आपने रोजगार दे दिया, और अगर कहीं आपने 10 लाख से किया तो 75 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आज जिस कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज अनएम्प्लॉयड हो, तो उस कंट्री में कंट्री की चाहत क्या होगी, वो कंट्री की चाहत है कि वी आर लुकिंग फॉर दोज यंगस्टर्स who will be coming forward and setting up their venture and providing job for self and job to others. तो
तो विद दैट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ये 3 चीजें जो है अनाउंस कर रखी है। 1 मेक इन इंडिया, 2 स्टार्टअप इंडिया, 3 स्टैंड अप इंडिया। और ये जो सेल आपका बना है, तो ये बना इसलिए है कि भी कम विद इनोवेटिव आइडियाज, सिट देयर, हैव डिस्कशंस विद योर फैकल्टी एंड देन try to get startup status and go to the incubator, do the research, come with the product and set up a venture, and उससे होगा क्या कि you'll be helping the economy। तो ये जो सारा है ये एक इनिशिएटिव है एंड मैं गुड विशेस कन्वे करता हूँ टू योर कॉलेज कि ये जो इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेल है ये सक्सेसफुल हो जाए। तो पहले मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ, व्हेन we are talking, madam was talking, principal sir was talking and they were talking about the innovation। तो इनोवेशन ऐसा कुछ नहीं पहाड़ को खत्म करना है। इनोवेशन यही है कि क्या कुछ नया, कुछ नए ढंग से किया जाए ताकि हर चीज को हम मतलब कि उसको इफेक्टिव कर दें। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। आई एम नॉट टचिंग एनी स्कीम बिकॉज स्कीम्स बहुत है जो आपको कल को जब आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो आपको हेल्प करने के लिए है स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल जब दोबारा मौका मिलेगा। पर वो मौका हम उनके साथ लेंगे द पीपल हु विल डिसाइड टू कम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मींस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आना चाहे तो उनके लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो चार्म है मैंने आपको पहले बता दिया। और सबसे बड़ा चार्म जो मिलता है एक एंटरप्रेन्योरशिप में वो ये है कि यू विल बी फिक्सिंग योर सैलरी, यू विल बी डिसाइडिंग योर इंक्रीमेंट एंड वॉट एवर यू डू। और फील्ड में कभी नहीं मिलता। एक पर्सन स्टार्ट्स ए जॉब, वो एक टीचर बनता है, करते करते डायरेक्टर एजुकेशन बन जाता है। पर टुमारो मॉर्निंग डायरेक्टर एजुकेशन को जब उसका बेटा या उसकी बेटी बोलते हैं कि पापा अपनी कुर्सी मुझे दे दो, कोई नहीं दे पाता। आप किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वाइस चांसलर की लिस्ट लगी होगी, पर कभी ऐसा नहीं ढूंढोगे कि वाइस चांसलर का बेटा भी वाइस चांसलर, वाइस चांसलर की बेटी वाइस चांसलर, वो नहीं बने। वहां तो नया ही बंदा है। बट यस, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप किया, चाहे वो इंजीनियरिंग में किया एंटरप्रेन्योरशिप किया, चाहे एकेडमिक्स में, चाहे इंडस्ट्री में, कहीं भी किया, उसको रिटर्न ये मिलते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ी उसकी जगह ले लेती है। एंड इट इज गोइंग टू हैपन। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन पंजाब यूनिवर्सिटी कि पिताजी वाइस चांसलर थे, अब बेटा वाइस चांसलर, अब बेटी वाइस चांसलर, नहीं होगा। बट इट इज गोइंग टू हैपन विद एलपीयू। एलपीयू में मिस्टर मित्तल इज द चांसलर, हिज सन इज द वाइस चांसलर एंड हिज डॉटर-इन-लॉ इज ए प्रो वाइस चांसलर। एंड कल को उनके आगे बच्चे जो होंगे दे विल बिकम चांसलर और वाइस चांसलर। तो उनको मिलता है बिकॉज इट हैपेंस इन ओनली इन इंडस्ट्री, ये किसी और फील्ड में नहीं होता। एंड सेकेंडली, वॉट एवर यू डू इन ऑल अदर फील्ड्स, उसका रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिले या ना मिले ये नहीं पॉसिबल, बट इंडस्ट्री में है। टुडे समबडी इज स्टार्टिंग विद 2 लाख रुपीज, 10 साल के बाद उसका एम्पायर 20 करोड़ का हो गया। तो उसका बेटा और उसकी बेटी जब गद्दी संभालते हैं तो कभी नहीं बोलते हम 2 लाख वाली गद्दी संभाल रहे हैं, वो 20 करोड़ वाली गद्दी संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ी बात होती है कि यू विल बी योर ओन बॉस। बिकमिंग योर ओन बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंसर्न एक है कि जॉब्स वो सबको प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। यू क्रिएट एम्पायर, यू क्रिएट ए सेटअप जिसमें आपने अपनी जॉब क्रिएट की एंड यू विल बी क्रिएटिंग जॉब फॉर अदर्स। तो विद दिस इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट स्कीमें लॉन्च कर रही है और गवर्नमेंट ने देखा कि हर टाइप की इंडस्ट्री तो हो रही है सेटअप, बट विद इनोवेशन न्यू आइडियाज के साथ भी आए तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को डाला। और स्टार्टअप का बेनिफिट जो है बहुत लोग ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ पीपल दे आर सिटिंग इन इंक्यूबेशन सेंटर। तो कभी मौका मिला तो मैंने पहले बताया कि आप स्टार्टअप जो है उनके साथ आपकी बात भी करवाएंगे सो दैट आपको लगे कि इफ दे कैन डू तो व्हाई नॉट वी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर परमजीत सिंह सेटअप कर सकता है हनी हट, आरसीडी, ऑटोमोबाइल का यूनिट और मेरे और भी काम के चलते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू। तो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। और अगर आप कर जाओगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ पढ़ने के बाद ये सोचो इंटर्नशिप करनी है, और इंटर्नशिप जो 6 महीने की 1 साल की करनी है, किसी के मम्मी पापा मना नहीं करते। तो इंटर्नशिप जो आप करना चाहो तो वो कर सकते हो कि वे यू कैन एक्सप्लोर कि वेदर यू कैन डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप कर सको तो बहुत बड़ी बात है। आरसीडी का मैं आई एम वर्किंग विद आरसीडी, तो मैंने मैडम को ही पहले बोला है, आपको ही बोल रहा हूँ
कि एनीबॉडी, बिकॉज आज की डेट में दो ही चीज बताया मैंने आपको, जॉब विद द प्राइवेट विल बी पॉसिबल इफ यू आर प्रॉपर्ली स्किल्ड। तो स्किल अगर इन्हांस करने के लिए अगर कभी किसी बच्चे को लगे हमने ट्रेनिंग लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम चलते हैं। एनी टाइम यू कैन कम टू अवर ऑफिस एंड ज्वाइन एनी प्रोग्राम, चाहे वो टेली का है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे कोई और भी है, रिटेल का है, तो यू कैन ज्वाइन दैट। बट उससे ऊपर है कि एनी टाइम यू डिसाइड कि यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, अपना आप सेटअप करना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एनी टाइम यू कैन कम टू माय ऑफिस। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोग्राम भी चलाते हैं एंड पीपल की काउंसलिंग करते हैं, व्हाट दे कैन डू, क्योंकि आंसर क्वेश्चन यही होते हैं, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो उन सब का आंसर जो है हम देते हैं। और जो इनोवेशन के साथ आएगा, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएगा, तो डेफिनेटली वी एंड योर कॉलेज विल बी हेल्पिंग देम टू गेट फर्स्ट स्टार्टअप स्टेटस, एंड देन आपको जगह मिलेगी प्रॉपरली एट इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे आपको कुछ वो आपको फंड्स भी मिलते हैं, थोड़े पैसे मिलते हैं एज ए, वो जो आपको ऑनरेरियम बोलते हैं उसकी शेप में, वो भी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और व्हेन यू विल बी क्लियर अबाउट योर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली विल हेल्प यू कि आपको उसकी सपोर्ट जो चाहिए थ्रू एंजल, थ्रू वेंचर कैपिटल और थ्रू बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि 1-1.5 घंटा लगातार आपको बोलना पड़ता है, तो वो जो फेस टू फेस आई टू आई कॉन्टेक्ट है वो हो नहीं पाता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कोशिश की आपको हर चीज प्रोवाइड, मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डेफिनेटली यू आस्क मी, सो दैट जो चीज कोई रह गई है तो उसको हम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू योर कॉलेज, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। बट उससे पहले आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, any question related to entrepreneurship, innovation and startup, or any question related to any field, please. And you can take my address from your madam, and anybody जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई आप इमीडिएटली कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, वेलकम, बट एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल सपोर्ट, ऑल गाइडेंस, ताकि आप अपना यूनिट सेटअप करो एंड उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। Thank you, madam. Any question, madam? If anybody is interested to ask. Yes, students, the house is open for the question answers. Any student wants to ask any question? Haji, you are not asking any question. So can you give me the answer? कि micro industry, the definition की है, what is the definition of micro industries? Any student, you are writing? Thank you sir, Haji, anybody? Yes, Anjuman, you are going to speak something. सर जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज को एग्जामिन करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सर मेरा डाउट ये था एक्चुअल में, सर इंडस्ट्री स्टार्ट करना या फिर कोई अपनी खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करना, that is something everyone wants कि वो खुद बॉस रहे सर, but मतलब is it really possible practically, because it requires a lot of amount to start. नहीं बेटे, there is no problem, you have to match with your resources, ऐसा कुछ नहीं है, it is not difficult, tomorrow morning you can start, there is no problem at all, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा पैसा चाहिए और कुछ करना है, people they have started with scrap, जितने लोग बड़े बड़े ऊपर पहुंच चुके हैं किसी को पूछोगे they started from scrap, तो इसमें कुछ नहीं है, क्लैरिटी है आइडियाज की। जब मैं माइक्रो की बात कर रहा था, माइक्रो इंडस्ट्रीज और स्मॉल डिफरेंट है, इनको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, इसलिए माइक्रो स्मॉल इनको बुलाया जाता है। तो आप कुछ ऐसा नहीं है, whenever you decide you can come to us, we can sit together, we can talk, even आपका जो सेल है they can help you, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। I know so many people, they started with ₹100, they started with their number of people, they started with 1 lakh, और मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, आई स्टार्टेड वेयर आई एम सिटिंग विद ₹2.50 इसके बाद ₹2.5 के पेन के साथ स्टार्ट किया है। आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स, ₹2.5 के पेन से स्टार्ट किया। नो डाउट ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री मैंने 2 लाख से स्टार्ट की, बैंक लोन लिया, मैंने हनी हट चलाया, उसमें 10 लाख रुपए लोन लिया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट वो लोन भी 2 मिनट में वापस किया। बट
₹2.5 के पेन से आई स्टार्टेड दिस वेंचर बिकॉज आई वाज नोइंग मेरी स्किल है, एंड स्किल में देयर इज नो प्रॉब्लम. आज देयर आर नंबर ऑफ पीपल यू विल मीट, प्लम्बिंग से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिशियन से स्टार्ट किया, है ना, और उनके पास कुछ भी नहीं था, स्टार्ट किया, आज वो बड़े बड़े वेंचर लगा के बैठे हैं. आई नो सो मेनी पीपल, वो साइकिल के, स्कूटर के पेंचर लगाते थे, आज बड़े बड़े शोरूम्स में बैठे हैं. तो बेटे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. जितना आपके रिसोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. एंड नोबडी इज गोइंग टू से स्टार्ट विद प्रोप्राइटरशिप. अपने आप स्टार्ट करो. कल यू विल सी व्हेन यू विल बी डूइंग समथिंग बेटर, पीपल विल बी ज्वाइनिंग यू एज अ, वो फिर पार्टनरशिप हो गया, फिर होते होते वो लिमिटेड कंपनी भी जाता है. तो देयर इज नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आप मुझे बोलोगे तो एग्जांपल मैं दे सकता हूँ हाउ दे स्टार्टेड. आज हीरोज जो है, इसका गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड पे नाम है, लार्जेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. बट कैन यू बिलीव इट, उनके बुजुर्ग जो थे वो साइकिल के पेंचर लगाते थे. तो ऐसे एक नहीं कितने एग्जांपल है कि दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल, रीच्ड ऑन द टॉप. तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट. ठीक है, थैंक यू बेटे. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, आई एम एक्सपेक्टिंग 1 or 2 more क्वेश्चंस. बड़े लोग बैठे हो आप बच्चों, थैंक यू. इतनी देर बैठना, है ना, बैठे हो सुन रहे हो, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. खैर मैडम्स का तो दोनों का ग्रेटफुल हूँ, तरनजीत मैडम एंड रमनदीप मैडम एंड for enlightening our students. Your guidance and words of wisdom, they will go a long way in motivating our students to be more creative and to develop their entrepreneurial skills. Thanks to you, sir. Now, may I request? नहीं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जी. एक बच्चे ने लिखा है, सर I was somewhere getting depressed for my profession, but your lecture really helped me. Bete, I'll tell everybody that whenever you are interested, you can come to me, and whatever I talked from my own experiences, and I'm not joking. My father was in job, my brother was in job, I was in job, everybody was in job. We never thought we'll be setting up our own venture. पर आज बड़े अच्छे अच्छे यूनिट्स मेरे अलग अलग चीजों के चल रहे हैं. आई एम इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. वो आज शेयर नहीं करता, बट पैशन इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब आज मुझे जरा सा मौका मिल जाए बोलेगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज इट इज माय पैशन. पैशन इज एंटरप्रेन्योरशिप. अदरवाइज आई एम रनिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, है ना. तो डेफिनेटली आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू सीक अवर हेल्प, गाइडेंस, तो विल बी अवेलेबल. ठीक है. वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी. So every services are free of cost, and we work on behalf of Government of India. So skill and entrepreneurship, anytime you can come. ठीक है जी, thank you मैडम. आगे कुछ ऐड करना हो तो. Good afternoon, sir. One of the students, how can we reach you? So the rest by can office. be provided. I'll just send my address. Yes. I'll send my address and contact number, है ना, on this. Yes, sir. Yes, sir. Please send that. I'm sending Send that. Yes, sir. address. Thank you so much. The webinar was very good, sir. Thank you for your guidance, sir. Thank you very much बेटे. Thank you very much. और आप सुन रहे बहुत बढ़िया है जी. हाँ जी. Yes, हाँ sir. जी. Anybody else? Now, may I invite Dr. Taranjit Rao, coordinator of Innovation Cell of our college, to pay a vote of thanks. Yes. Thank you, Raman. Good afternoon to all of you. It is indeed a great honor and privilege to extend vote of thanks. My profound thanks and gratitude to Sardar Paramjit Singh, the eminent speaker of the day, for sparing his valuable time and acceding to our request to enable us to actively engage our students and faculty in innovation and entrepreneurship related activities. Sir, your motivational and refreshing ideas have provided our students a platform to inculcate crucial life skills that will help them navigate uncertain future. Sir, I assure you that Innovation Cell at SDGS College will encourage, inspire, and nurture the budding innovators. I want to extend my generous thanks to Principal Sir and management of our college for their leading supervision and constant inspiration.
Thanks are also due to my worthy colleagues who have motivated me to take this initiative. I feel obliged to each member of the innovation cell for their appreciating involvement and the willingness they have expressed to strengthen the innovation cell. I take this opportunity to thank all my dear students for their enthusiastic participation and cooperation in the smooth conduct of this online session. Dear students, there is great time ahead of you. Young entrepreneurs prove to foster more competitive economies while adapting more rapidly to globalized societies. You are the source of innovative solutions we all need to address current and future challenges. So keep innovating. Once again, I thank everyone present here. Have a nice day. My request to all of you is to please switch on your cameras for a group photograph and a gentle reminder to fill the registration form available in the chat box. Okay, madam. Thank you very much, Ji. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, thank you once again. And students, the session is over. So now you can leave. चलो रिलैक्स हो गया एक हो गया लो भी हम 50 मिनट